Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Clear? We are going to start a new chapter, that is class 9. We are going to start chapter of class 9, chapter number 3, coordinate geometry. Clear? In this chapter we are going to cover the introduction part also. इस वीडियो के अंदर हम लोग introduction part भी cover करेंगे and exercise 3.1 as well. Clear? Coordinate geometry क्या होता है, that we will learn first of all. I hope you all have gone through the other chapters which I have already uploaded. If not, please go through each and every chapter which will be helping you in the academic years. आपको syllabus में concepts clear करने में mainly जो 10th standard का base बोलते हैं 9th standard. This is the base. 9th standard is the base of the 10th standard. So please go through each and every concept properly, because each and every point of 9th standard is going to come in 10th standard. So go through it properly. So let us begin. What else are there? See here, in coordinate geometry we are going to speak about x-axis, y-axis, everything. Clear? X-axis and y-axis in your syllabus. X-axis and y-axis we will cover. So what are these? Everything we are going to cover. So let's go about the content. Okay, what are the topics which we are going to cover in this part? So that is Cartesian system, axis, origin, coordinate, quadrant, organizing the data. Clear? See, these all things we are going to cover. And exercise 3.1. See, these all are the things which we are going to cover in this one. What else things? So first of all, talk about Cartesian system. कि Cartesian system क्या होता है? चलिए, first of all we are going to talk about Cartesian system. Do you know what Cartesian system is? Cartesian system is represented as coordinate system in which there is xy plane, coordinate plane and Cartesian plane is used. देखो Cartesian क्या होता है पहले वो समझो. Cartesian plane है या coordinate plane, all are the same thing. xy plane same thing. मतलब आपका y एक्सिस और x एक्सिस का जो सिस्टम होता है मींस टू डायमेंशनल. हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल. क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस. क्लियर? सो हियर x and x dash, y and y dash. So this where this all things are there. आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा किस तरह से ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं, नंबर लाइंस क्या होता है एंड एवरीथिंग. सो सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट and here are the positive values, all the positive values. Here are negative values of x axis, here are the positive values of y axis, here are the negative values of y axis. So इस तरह से सारे different होते हैं values. So whenever a point or anything represented in xy plane, suppose यहाँ पे किसी ने represent किया, यहाँ पे किसी ने represent किया या anywhere, so this representation is known as xy plane representation, coordinate system or Cartesian system. आप कुछ भी बोल सकते हो, all are the same. Clear? So let us take an example. See, this is the graph which we represent. Here in the right hand side there will be positive sign, all values would be positive, and here on left hand side all values of x axis would be negative. Here it will be positive y axis and here it would be negative. So all things are related to it. और numbers आपको पता ही है. See what else here, if 1 2 3 and 4, here is -1 -2 -3 -4, here it is 1 2 3 and 4, so here it would be -1 -2 -3. See, values you can take according to you, but it should be properly managed. एक्स वाई प्लेन के अंदर होता है. इसको टू डायमेंशनल भी बोला जाता है क्योंकि टू डायमेंशंस मींस दो ही प्लेन्स हैं हमारे पास, एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन. एक्स एक्सिस के बेस पे हम लोग कर रहे हैं तो इसको एक्स वाई प्लेन बोला जाता है. क्लियर? एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बेस पे, सो एक्स वाई प्लेन. क्लियर? एज ऑन नंबर लाइन देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. Here also x axis, that is horizontal, and y axis, that is vertical line, is used on which negative and positive numbers are there. Clear? जैसे नेगेटिव नंबर लाइन आपने बनाई होगी. क्लियर? नंबर लाइन, see 0 1 2 3 and so on. Here -1 -2 and -3. Same way here two axes are there, x axis and y axis. X axis is horizontal line, x axis is horizontal line and y axis is vertical line. ठीक है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. सो उसके बेस पे दोनों के यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज, हियर आल्सो पॉजिटिव y एक्सिस, हियर x एक्सिस नेगेटिव, हियर y एक्सिस नेगेटिव. ये चीज याद रखना है. क्लियर? अगर हम लोग देखें तो ये इतना जो पार्ट है इसके अंदर सारी की सारी x एक्सिस हो या y एक्सिस हो, ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव. आइदर x एक्सिस और y एक्सिस, ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव. एंड हियर if we talk about, so here
y axis, x axis would be negative and y axis would be positive. If we talk about here, so both x axis and y axis both would be negative. And if we talk about here, so here x axis is positive and y axis is negative. वापस एक बार अच्छे से समझो, ये बाद में मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्वाड्रेंट आएगा तब, लेकिन ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दोनों के ऊपर पॉजिटिव एक्सिस भी है, नेगेटिव भी वैल्यूज भी है, पॉजिटिव वैल्यूज भी है, नेगेटिव वैल्यूज भी है, एंड इवन सेंटर पॉइंट इज 0. सो ये चीज आपको पहले क्लियर रखनी है, फिर आगे की बात. क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा. एवरीथिंग इज क्लियर. सो लेट अस गो, देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग. इतना याद रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती है. क्लियर? नाउ एक्सिस, एज आई सेड देयर आर टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. उनको अलग अलग नेम से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? सी, इफ इट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस. Clear? And if it is vertical axis, so it is known as y axis. You use scale and pencil properly, अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने होते हैं अगर होते हैं, और ग्राफ में अगर बना रहे हो तो ग्राफ में तो प्रॉपर बनाना ही होगा. क्लियर? बट नीट एंड क्लीन डायग्राम मस्ट बी देयर. सो एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा एज वेल. इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा भी बोला जाता है. एंड y एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट, y एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है. लेट अस चेक आउट. सी, दिस इज द ग्राफ. देयर आर टू डिफरेंट एक्सिस इन कार्टेशियन सिस्टम. कितने? टू डिफरेंट एक्सिस इन द कार्टेशियन सिस्टम. फर्स्ट, इट इज नोन एज एक्स एक्सिस. क्लियर? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, if whenever it is asked which is the horizontal line in the Cartesian system, which is the horizontal line in coordinate system, which is the horizontal line in xy plane, कुछ भी पूछे, whatever it is asked, you should learn that x axis is the horizontal line in Cartesian system, coordinate system or xy system. So x axis is also known as abscissa. x axis is also known as abscissa. x axis को abscissa भी कहा जाता है. Clear? So abscissa or y axis, it is horizontal line with negative and positive number. Then y axis, it is also known as ordinate. अगर पूछा जाए vertical axis in Cartesian system, vertical axis in coordinate system, vertical axis in xy plane, so it is known as positive and negative number on vertical axis, and it is known as y axis or ordinate. It is known as y axis or ordinate. तो याद रखना है, horizontal line x axis and vertical line that is y axis. horizontal line यानी एब्सिसा भी बोला जाता है, वर्टिकल लाइन यानी ऑर्डिनेट भी बोला जाता है. चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा. सी, इफ यू फाउंड एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, you can ask in the comment section. Otherwise it must be clear and neat and clean. Go through the video again and again. जब तक समझ नहीं आ रहा है तब तक बार बार देखो. You will surely get it down. फिर भी कभी भी कोई भी डाउट लगे, you can ask me out, you can question me in the comment section. Clear? Next we will move on to the coordinate. सी, जैसे x एक्सिस और y एक्सिस की बात थी हम लोग ने. सी, लेट मी टेल यू, अगर x एक्सिस की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं कहीं पे भी, सपोज हियर इट इज 1 2 3, तो अगर x एक्सिस की कोई भी वैल्यू है तो उसको जैसे हम लोग एब्सिसा बोलते हैं या वैल्यू ऑफ x बोलते हैं. क्लियर? वैल्यू ऑफ x. y एक्सिस की कोई भी वैल्यूज निकालिए तो उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y. तो क्लियर? सो एक्चुअली अगर इस तरह से वैल्यूज लिखी जाए, अगर y एक्सिस की वैल्यूज है जैसे 1 2 एंड 3, सो इट इज नोन एज वैल्यू ऑफ y एक्सिस और वैल्यू ऑफ y, और इट इज नोन एज ऑर्डिनेट. ठीक है? ये जस्ट सिंगल अगर x एक्सिस की वैल्यू है, y एक्सिस की वैल्यू तो एब्सिसा या ऑर्डिनेट. अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, सपोज कोऑर्डिनेट, जैसे सपोज कभी भी हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये याद रखना है, x एक्सिस की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में आएगी. ये हमेशा याद रखो. क्लियर? एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू है, सपोज 7 है, 6 है, 5 है, 4, वॉट एवर इट इज, या -1 -5 -5, सो एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले आएगी और y एक्सिस की जो भी वैल्यू है 1 2 3 4 5 वॉट एवर इट इज, सो y एक्सिस की वैल्यू बाद में आएगी. सो इस तरह से हम लोग कोई भी पॉइंट्स को डिनोट करते हैं एंड इट इज नोन एज कोऑर्डिनेट. ठीक है? सिर्फ x की अगर वैल्यू है तो इट इज नोन एज एब्सिसा. क्लियर? सिर्फ y की वैल्यू है देन इट इज नोन एज ऑर्डिनेट. लेकिन अगर दोनों x और y दोनों की अगर वैल्यू है साथ में तो इट इज नोन एज कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट. ठीक है? ये चीज याद रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड. सो हियर सी, हियर वन पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड, पॉइंट P, by 2 and 3.
2 मीन्स वैल्यू ऑफ x कैसे आया वो मैं बताता हूँ. 3 दैट इज y दैट इज वैल्यू ऑफ y. 3 जो है वैल्यू ऑफ y. अब दोनों वैल्यू कैसे आई? सो व्हाट यू टू चेक इज, सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, हमने पॉइंट लिया एक्स वाई की वैल्यू भाई x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3, क्योंकि मैंने बोला था पॉइंट में x पहले आता है देन y पीछे. x comes first, that is abscissa is first and y axis that is ordinate is second. So what you to check is, इसको आप डॉटेड लाइन करो, डॉटेड लाइन एंड चेक x axis की वैल्यू क्या है 2. So I have placed 2 over here first. Then draw perpendicular line on y axis. y axis के ऊपर डॉटेड लाइन बनाओ, आपको दिखेगा 3. So we have put y equals to 3. So coordinate मतलब x और y दोनों की वैल्यू साथ में अगर होती है, मींस x एंड y वैल्यू आर प्लेस्ड टुगेदर, देन इट इज नोन एज कोऑर्डिनेट. समझ में आ गया? आई होप. एक बार फिर से समझ लो. सिर्फ अगर x एक्सिस की वैल्यू है देन इट इज नोन एज एब्सिसा, इट इज नोन एज एब्सिसा. इफ y axis value is there then it is known as ordinate, and if together it is there x and y both, then it is known as coordinate. इनको कोऑर्डिनेट बोला जाता है. ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है. एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट है. तो वैसे ही अगर पूछा जाए व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट P? एब्सिसा मींस वैल्यू ऑफ x, एंड वैल्यू ऑफ x हमेशा x पहले होता है y बाद में होता है. सो एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट P, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, so x equals to 2. And if it is asked ordinate of point P, ordinate of point P, that is y equals to 3. Clear? And if it is asked coordinate, coordinate of point P, अगर coordinate of point P पूछा जाए, so it would be x, y यानी 2, 3. ठीक है, समझ में आ गया? एब्सिसा किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, when we put value of any particular point in the Cartesian system with the value of x axis and y axis, here the coordinate of point P, that is 2, 3. चलो वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, सपोज आई एम गिविंग अ पॉइंट हियर. देख लो ये पॉइंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एग्जैक्टली, इसको मैं दे देता हूँ Q. सो अगर इसको बोला जाए कि फाइंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले एब्सिसा of point Q, that is x equals to ordinate of point Q, that is y equals to, and then coordinate of point Q. See, first of all you try. आप सोचो कैसे करना है. What I said just सबसे पहले हम लोग एब्सिसा की बात कर रहे हैं. अगर we have to find एब्सिसा, clear? So what we will do first of all, just पहले इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो x एक्सिस के ऊपर. स्केल से हमने परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन बनाई. दिस इज -4, तो आपका एब्सिसा हो गया -4, मींस x की वैल्यू दैट इज -4. नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन y एक्सिस. y एक्सिस के ऊपर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. सो इट इज 4, यानी y यानी ऑर्डिनेट हो गया आपका 4. और अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए दैट इज x, y, दैट वुड बी इक्वल टू -4, 4. समझ में आया कैसे फाइंड करना है? आई होप अब तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि किस तरह से हमें करना है. क्लियर? इज देयर एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनीथिंग? आई डोंट थिंक सो. फिर भी अगर है तो कमेंट कीजिए तो पता चल जाएगा. बट एक चीज याद रखनी है, कोई भी पॉइंट हो, सपोज आई एम टेकिंग पॉइंट आर, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन x एक्सिस, तो 4, तो 4. ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन y एक्सिस, दैट इज -3, तो -3. सो कोऑर्डिनेट हो गया 4, -3. इस तरह से आपको सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह ड्रॉ करने हैं, फाइंड करने हैं. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन. नेक्स्ट इज x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दैट इज एब्सिसा. क्लियर? इफ यू आर सेड टू फाइंड x कोऑर्डिनेट दैट इज एब्सिसा, यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, या फिर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन x एक्सिस. ठीक है, ये डायरेक्टली हम ये करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो सीधी सी आपको वैल्यू मिल जाती है, दैट इज 2. सो दैट इज 2. सो एब्सिसा अगर पूछा है तो एज आई सेड एब्सिसा दैट इज x इक्वल्स टू 2. ठीक है. सिमिलरली इफ यू आर सेड टू फाइंड y कोऑर्डिनेट, दैट इज y कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट. मैंने ऑलरेडी बता दिया है. ऑर्डिनेट मींस ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन y एक्सिस, यानी 3. सो व्हेन यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन y एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस लिखा है मैंने क्या बता रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस. y एक्सिस के ऊपर डायरेक्टली ड्रॉ करते हो
तो डायरेक्टली पॉइंट मिल जाएगा। बाकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3, सो वो चीज अलग रहेगी। बट डायरेक्टली आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यू विल गेट वाई कोऑर्डिनेट। सो वाई कोऑर्डिनेट दैट इज, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट दैट इज इक्वल्स टू 3। वाई कोऑर्डिनेट मींस ऑर्डिनेट दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। देन ओरिजिन, हाँ ओरिजिन क्या होता है, देखो बाकी सब पढ़ लिया, इतना सारा पढ़ लिया, लेकिन ओरिजिन पता नहीं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, व्हेन दे बोथ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये दोनों जब एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन कैसे, सो ओरिजिन की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगा, तो ओरिजिन होता है 0 0, यानी x coordinate is also 0 and y coordinate is also 0, that is x और y दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है, that is 0, 0। अगर पूछा जाए what is the abscissa of origin, तो n 0, what is the abscissa ordinate of origin, and then to 0 means x equals to 0, y equals to 0 at origin। मतलब ओरिजिन पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है, 0, 0, क्लियर, दैट इज टू बी टेकन केयर। सो 0, 0, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस यानी एब्सिसा and y axis that is ordinate, it is the intersection point of abscissa and y axis that is ordinate at the value of, at the origin the value of x is 0 and y is also 0, at the origin value of x is 0 and y is also 0, क्लियर। तो ओरिजिन समझ में आ गया। चलिए किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बता दो, नहीं है तो जस्ट कोई दिक्कत नहीं, गो अहेड, अदरवाइज यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ताकि आपको पता चलता रहे, क्लियर। नेक्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाट इज द क्वाड्रेंट, देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, व्हेन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ईच विथ ईच अदर, यानी जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इट डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, part 1, part 2, part 3, part 4 and it is known as quadrant, it is known as quadrant क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर, 4 इक्वल पार्ट्स में किसी भी प्लेन को डिवाइड कर रहे हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस, दैट इज नोन एज क्वाड्रेंट, क्लियर। सो लुक ओवर हियर, दिस इज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। Cartesian system is divided into 4 different quadrants, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4। देखो अब ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं, when x axis and y axis intersect each other and divide the plane into 4 equal parts, that part is known as quadrant। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वो सब चीजें ध्यान देखनी, पहले मैं बता देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो आपको पता है x एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है, y एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है, x एक्सिस इज नेगेटिव ओवर हियर and y axis is negative over here, means in first quadrant value of x comma y that would be both positive, x and y both would be positive। and in second quadrant में देखो x की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव, सो x comma y अगर है तो नेगेटिव comma पॉजिटिव, y एक्सिस क्या है पॉजिटिव एंड x एक्सिस नेगेटिव, क्लियर। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव एंड सेकंड क्वाड्रेंट x is negative and y is positive। in third quadrant see it is x axis also negative, y axis also negative, तो हमेशा x y means नेगेटिव नेगेटिव, दोनों की साइन माइनस होगी, नेगेटिव होगी इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज x एक्सिस नेगेटिव एंड y एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव, सॉरी इट्स नॉट द केस, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया मैंने। सी व्हेन x एक्सिस तो ये रहा तो पॉजिटिव, यानी x y अगर हम लोग लिख रहे हैं तो x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, देखो y वैल्यू नेगेटिव है और x मींस, ध्यान दो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट, अगर फर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करें तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव, देखो y एंड x बोथ आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव, in third quadrant both are negative and in fourth quadrant x positive and y negative, x positive and y negative। so ये चीज याद रखनी है, here both positive, here both negative, here x negative y positive and here y negative and x positive, ये चीज याद रखनी है। वन बाय वन हम लोग हर एक क्वाड्रेंट को देखेंगे। लेट्स लुक ओवर द नेक्स्ट क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट वन, in quadrant 1
x coordinate and y coordinate both are positive. In quadrant 1, x coordinate and y coordinate both are positive, means x and y, that is both are positive. Look here, see, here it is positive, here also positive, so x and y both are positive in first quadrant. In first quadrant both are positive, ये चीज आपके दिमाग में फिट कर लो. Then in second quadrant x coordinate is negative, because यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती है और यहाँ पे पॉजिटिव आती है. Here y and here x is negative, so x is negative and y is positive. So in coordinate of x y in second quadrant is minus and plus, so this here नेगेटिव x वैल्यू एंड पॉजिटिव y वैल्यू. ये चीज हमेशा याद रखना, x is taken first and y is taken second. So here y is negative and x is negative and y is positive. याद रखो, x is negative and y is positive. वैल्यूज दिमाग में फिट कर लो. Because of the negative values on the left hand side and right hand side there is positive value. Above the x axis there is positive y value and below the x axis there is negative y value. So second. Then similarly third quadrant both the values x axis and y axis, x coordinate and y coordinate both are negative. So coordinates हो जाते हैं minus minus. So here it is, because here see x axis is also negative, y axis is also negative, so both are negative negative. So both value, जब भी कोई भी नंबर या कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ है and it is given that it is in the third quadrant, then both would be negative. That has to be taken care, ध्यान रखना है. In fourth quadrant x coordinate is positive and y coordinate is negative. X is positive and y is negative. So प्लस माइनस, यहाँ पे x जो है पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y जो है नेगेटिव होता है. सो x कोमा y दैट इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस, प्लस कोमा माइनस, प्लस कोमा माइनस. सो दिस आर द वैल्यूज ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4. 1 2 3 4 इन क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, ये सब चीजें याद रखनी है. ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, किस तरह से हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लियर. सी दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ वैल्यू पॉजिटिव. ये पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. सी x axis 2 and y axis 3. here it is minus and 1. so x axis देखो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, so minus 3 and परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया y axis पे, तो 1. so यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. In first quadrant both are positive, so see 2 and 3 both are positive. In second quadrant x is negative, y is positive, so see minus 3 and 1. In third quadrant both are negative, so see when I drop perpendicular distance from x axis then I will get minus 1.5, this is 1.5, clear. And when I drop a perpendicular on y axis it is 2.5, so minus 2.5, so both are negative. In fourth quadrant here it is the point, so when I drop a line, अगर मैं perpendicular line बना रहा हूं तो I get 2, clear. And when I draw perpendicular line on y axis, so minus 2, so here x is positive and y is negative. So according to you have to arrange, कैसे प्लॉट करना है, क्या करना है, हम लोग एक्सरसाइज के टाइम देखेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज, बट अभी समझ के रखना है, दिस इज द वे वेयर द पॉजिटिव वैल्यू इज देयर, नेगेटिव वैल्यू इज देयर. एक्स कब पॉजिटिव है, वाई कब पॉजिटिव है, एक्स कब नेगेटिव है, वाई कब नेगेटिव है. सो ये सब चीजें आपको दिमाग में फिट कर लो पहले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव. सी अगेन मैं लिख देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट x negative y positive, third quadrant both negative and fourth quadrant x positive y negative. बस इन्वर्ट करना है, ये दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, माइनस प्लस तो प्लस माइनस, ये दिमाग में फिट कर लो तो आपको इजी हो जाएगा. नाउ हियर यू कैन सी द वेरियस पॉइंट्स आर इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 3.1. देखो ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज, दिस इज टोटली थियोरेटिकल एक्सरसाइज, सो डोंट गेट कंफ्यूज, कोई कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं, बट इट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल एक्सरसाइज. आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, यू कैन टेक रफली. सो डिजिटल मैथ्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. मतलब सपोज करो, देखो आपका टेबल में, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हाँ, टेबल को हम लोग इस तरह से बनाते हैं. ऑब्वियसली बात है, टेबल इज एन रेक्टेंगुलर टेबल होता है, स्क्वायर कैसा भी हो सकता है, किसी का सर्कल हो, बट मैं स्टडी टेबल है तो रेक्टेंगुलर टेबल काउंट कर रहा हूँ. सी लेट उसके सेंटर में हम लोग ले लेते हैं भाई ये एक्स, ये हमारा जो हो गया वाई एक्सिस, क्लियर. और उसके यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस.
जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ मैं अभी कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि आपका आपके टेबल के बेसिक नहीं, सिंपल बता रहा हूँ. सपोज योर टेबल इज सिचुएटेड, योर लैम्प टेबल लैम्प इज सिचुएटेड ओवर हियर. इसका कोऑर्डिनेट मैं सपोज मान लो कि यहाँ पे है, जैसे कि सपोज लेट मी टेल यू 1 2 3 1 2 एंड 3, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि इस तरह से वो है 4 एंड 5, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड हियर ऑल्सो 1 2 एंड 3. इस तरह से कुछ आपका दिया हुआ टेबल लैंप आपका यहाँ पे है. सो अगर आपको बोला जाए कि नाउ टेल मी वेयर इज योर टेबल लोकेटेड एक्चुअली, या आपका जो लैंप है वो टेबल पे कैसे लोकेटेड है, तो व्हाट आई विल टेल कि वो एक्स एक्सिस पे 3 है, क्योंकि देखो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो 3 आया, और वाई एक्सिस पे 2. मींस एक्स कोऑर्डिनेट coordinate equals to 3 and y coordinate equals to 2. Means we can say that coordinate of my lamp is equals to 3, 2. So my table is, or my table lamp is situated at 3, 2 in the on the table. वो डिपेंड करता है आप किस तरह से वैल्यूज ले रहे हो उसके बेस पे. सपोज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ लैंप ऑन द टेबल वी नीड अ कार्टेशियन सिस्टम. ऑब्वियसली बात है, एक्स वाई एक्सिस चाहिएगी तो कार्टेशियन सिस्टम चाहिए. कार्टेशियन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. क्लियर. टेबल पे टेबल लैंप का लोकेशन या किसी भी चीज का, सी यू आर सिटिंग ओवर हियर ऑन अ टेबल, एक टेबल है, टेबल पे आपकी अगर बुक भी पड़ी है तो आपको दो वैल्यूज तो चाहिएगी, एक्स एंड वाई की वैल्यू, तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि वो कहाँ पे है. सीरियसली आपके टेबल पे कोई नंबर्स नहीं होते. डोंट गेट कंफ्यूज कि आप भाई मैं भी अब टेबल ढूंढूं, टेबल पे नंबर्स वगैरह लिखूं, ऐसा नहीं. बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कहीं पे भी आपकी कोई भी चीज पड़ी है, अगर उसको लोकेट करना है, जैसे हमारे आपने सोशल में पढ़ा होगा लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. ठीक है, पूरा अर्थ सपोज है हमारा, उसके ऊपर लॉन्जिट्यूड्स लैटिट्यूड्स हैं, तो हमको लोकेशंस अगर चाहिए तो हमको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की वैल्यू चाहिए. तो जब आपके हमको हमारा इंडिया का या हमारा किस जगह पे है, जीपीएस के बारे में सुना है, वो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स पे वर्क करता है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता करता है. सिमिलरली वेर एवर वी वॉन्ट एनीथिंग, किसी का भी लोकेशन अगर चाहिए तो दो प्लेस की वैल्यू चाहिए, दैट इज एक्स और वाई की. इन कार्टेशियन सिस्टम वी नीड एक्स कॉमा वाई, दो वैल्यूज एटलीस्ट चाहिए. जैसे हम लोग मैप के अंदर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की बात करते हैं ना, सिमिलरली इन कार्टेशियन सिस्टम वी नीड एक्स एंड वाई. क्लियर. सो लेट पॉइंट एल बी पोजीशन ऑफ द लैंप ऑन द टेबल. देखो यहाँ पे पॉइंट एल है, ये मैंने बनाया, ये जो है पॉइंट एल, इट इज द पोजीशन ऑफ लैंप ऑन द टेबल. अब इसको अगर मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूं यहाँ पे यहाँ तक, तो इट इज 5, यहां से यहां तक देखो तो 3. सो एक्स मेरा हो गया 5 एंड वाई इक्वल्स टू 3. सो अगर किसी को भी मैं मुझे बोलना है कि भाई मेरा लोकेशन क्या है, तो एप्सिसा मेरा मैंने फाइंड किया, एप्सिसा इक्वल्स टू 5 एंड ऑर्डिनेट इक्वल्स टू 3. सो कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा, कोऑर्डिनेट मेरा हो गया दैट इज 3,5. coordinate is 3,5. So perpendicular distance from y-axis is given the value of x coordinate and the perpendicular distance from x-axis gives the coordinate of y-axis. ठीक है, वो आप अलग मेथड्स हैं कि यहाँ से देखो y-axis से कितना डिस्टेंस है 5, तो ये मुझे x की वैल्यू मिली. x-axis से कितना डिस्टेंस है 3, तो वो भी y की वैल्यू मिली. तो एज यू विश आप दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ. हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ लैंप इज 5,3. कोऑर्डिनेट यानी x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3. सो कोऑर्डिनेट ऑफ लैंप इज 5,3. कोऑर्डिनेट ऑफ लैंप क्या हो गया, 5,3 हो गया. सो किसी को भी मुझे लोकेशन देनी होगी, सो माय टेबल लैंप, मैं बोल सकता हूं माय टेबल लैंप इज situated with coordinate 5,3 on my table. तो ये वैसे आप भाई ऐसे कभी नहीं बोलते हो भाई मेरा टेबल लैंप इस 3,5 रेशियो से नहीं बोलते हो, बट ये जनरल कंसेप्ट्स हैं. ये आगे जाके बहुत सारे कंस्ट्रक्शन फील्ड्स वगैरह जो होती हैं, बहुत सारी लॉन्जिट्यूडनल और जीपीएस वगैरह होता है, वहां पे यूज होता है, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना है. क्लियर. सो दिस इज द वे. सेकंड, street plan. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. To the 200 मीटर अपार्ट, ये दोनों रोड्स एक दूसरे से पैरेलल 200 मीटर अपार्ट रन कर रहे हैं.
There are 5 streets in each direction. There are 5 streets in each direction. अब देखो, मैं पहले रोड बना दूं तो आपको पता चलेगा। ये रो समझ लो, ये स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 1। हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स थे और सबसे पैरेलल रोड्स चल रहे हैं 200 मीटर अपार्ट। ठीक है, 200 मीटर अपार्ट पैरेलल रोड्स चल रहे हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। तो इसमें ग्राफ बनाना था। क्लियर? There are 5 street in each direction using 1 centimeter equals to 200 मीटर। यहाँ पे 200 मीटर का हमने सोचते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक। ये मैंने सिटी का नोटबुक में मॉडल ड्रॉ किया। और ये याद रखना, दिस इज थियोटिकल, टोटली थियोटिकल, सो इसको कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डोंट वरी, थियोटिकल है। इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत रेयर केसेस में आते हैं। हाँ, डायरेक्टली आपको ग्राफ दे दे और उसमें से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को बोल सकते हैं, बट इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रेयर केसेस में आने वाला है। सो प्लीज टेक केयर। बट ठीक है, there are many cross streets in your model. A particular cross street is made up of 2 streets, one running in the north and south direction and another running in east west direction. ठीक है, एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये दो डायरेक्शंस हो गई हमारी। each cross street is referred to in the following manner: if the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at the crossing। यानी देखो क्या बोला इन्होंने, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ, सेकेंड स्ट्रीट ये वाली है, ये नॉर्थ में रनिंग कर रही है वो, और साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये फिफ्थ स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, वो यहाँ पे मीट कर रही है। क्लियर? क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग क्या हो जाएगा 2,5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड द हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3 एंड 3,4। देखो जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने बताया कि सेकेंड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली वो मीट कर रही है, तो उसको 2,5 बोलते हैं। तो 4,3 एंड 3,5 वाले कितनी स्ट्रीट हो सकती है? तो पहले 4,3 यानी फोर्थ स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड 3 मतलब थर्ड स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये 4,3 वाला एक ही पॉइंट हुआ क्रॉस, इससे ज्यादा कोई भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4,3 तो यही चलेगा, क्योंकि बाकी सब एक्सिस पे 1 2 3 4 एंड 5। सो हमेशा 4,3 वाला एक ही पॉइंट होगा। सिमिलरली how many cross street can be referred to as 3,4? तो 3 और 4, 3,4 वाली भी स्ट्रीट एक ही होगी। so only and only one street is possible या one crossing is possible between among the streets, so only and only one। तो ये चीज याद रखना है और ये टोटली थियोटिकल है, डोंट गेट कंफ्यूज। खाली पता करना है कि पॉइंट्स कैसे फाइंड करना है। सपोज यहाँ पे बोला एब्सिसा ऑफ 3,4, तो आपको लिखना है 3, ऑर्डिनेट ऑफ 4,3 सो ऑल्सो 3। सो ये चीज याद रखनी है कि x और y को कैसे बोलते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, डोंट गेट कंफ्यूज। एक्सरसाइज 3.2 3.3 इज देयर स्टिल, यू विल गेट डिटेल्स, आपको उसमें समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है। सो थैंक यू वेरी मच, बी विद अस, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स आल्सो। आप खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सी रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.1, डोंट गेट कंफ्यूज। वो स्ट्रीट्स दी हुई है, उसमें क्रॉसिंग जैसा मैंने बनाया है, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ लाइक दैट। बाकी कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ये जब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4 करेंगे, यू विल गेट श्योरली क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच, बी विद अस एंड टेक केयर।